Hello everyone, welcome to the SCA Smart Education. Today we are going to start the chapter number 3 Nouns, Subject English Grammar, Class 3rd. Okay, let us start with the first exercise. You know that noun are name of a person, place, animal or thing. Noun क्या होता है? Noun are the names. ये name होता है किसी person के, place के, animals के और things के. ठीक है? Put these noun in the correct boxes given below. 4 have been done for you. Okay. देखिए सबसे ऊपर बॉक्स में जो है डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके नीचे बॉक्स बना हुआ है. एक पीपल का बॉक्स है, एक प्लेस का, एक एनिमल्स का, एक थिंग्स का. अब इन जो ऊपर वाले बॉक्स है उसमें से जो पीपल में होंगे, जो लोग होंगे, उसमें पीपल के नीचे लिख देना है वो वर्ड. जो प्लेसेस, जो जगह होंगे, वो जगह वाले प्लेसेस में लिख देंगे. जो एनिमल्स होंगे वो एनिमल्स वाली कैटेगरी में, जो थिंग्स होगा वो थिंग्स वाली कैटेगरी में. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज postman. Postman comes under people, so write it down, postman in people section. Second is cat. Cat comes under the animals section, so write it down in animals section. Delhi. Delhi comes under the place section. Pigeon. Pigeon is a animal. Bell. Bell is a things. Donkey. Donkey is a animal. Bank. Bank is a place. Nurse. Nurse is a people. Sakshi. Sakshi is a name of a person, so write it down under section people. Beach. Beach is a place. Dolphin. Dolphin is an animal. Cobbler. Cobbler is a person who polish shoes, so this is also a people. Tea. Tea is a thing. Playground. Playground is a place where children play, so write it down under section place. Truck. Truck is a thing. Now come to the next exercise. Okay. Words like postman, playground, cat and bell are common noun. A common noun is a name of a person, an animal, place or a thing in general. कॉमन नाउन वो होता है, वो किसी नेम ऑफ अ पर्सन, कोई भी पर्सन का नाम हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई जगह हो सकती है. ठीक है. हियर आर द एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन, जैसे बॉय, सिटी, गर्ल, कंट्री, रिवर, कार. ये एग्जांपल है कॉमन नाउन के. नाउ साक्षी एंड दिल्ली आर ए प्रॉपर नाउन. क्यों? क्योंकि साक्षी एक प्रॉपर नेम किसी पर्सन को दिया गया है, दिल्ली एक जगह बताई गई है दिल्ली, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. A proper noun is a special name of a person, animal, place or a thing. It always begins with a capital letter. For example, Harsh, Mumbai, Tina, India, Gangas, Maruti. Now, next exercise. Write two proper nouns for each of these common nouns. अब हमें दो प्रॉपर नाउन लिखना है इस कॉमन नाउन का. पहला है सिटी. कोई भी दो सिटी का नाम लिखिए, एक दिल्ली, एक वाराणसी. सेकंड इज अ टीचर. राइट एनी टू टीचर नेम. हु इज योर फेवरेट टीचर? राइट योर नेम. नेक्स्ट, पेट डॉग्स. एनी डॉग्स नेम? जैकी एंड सैमी. रिवर नेम. कोई भी नदी का नाम लिखिए, गंगा एंड यमुना. नाउ कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? I saw a litter of puppies. Bought a bouquet of flowers. A litter is a group of puppies. जो litter है वो खूब ढेर सारे puppies को जब एक साथ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं litter of puppies. A bouquet is a bunch of flowers. जब फ्लावर एक बंच में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बुके. The word litter and bouquet are collective noun. A collective noun is a word that stands for a collection or a group of people, animal or thing. Collective noun वो होता है, ऐसे वर्ड होते हैं जो कि collection of
खूब ढेर सारे ग्रुप्स होते हैं पीपल के या तो एनिमल्स के या तो थिंग के, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. नाउ नेक्स्ट, टिक द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर दिस पिक्चर्स. पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसके जो सही कलेक्टिव नाउन वाले वर्ड है उसको हमें टिक करना है. फर्स्ट वन इज बंच एंड क्लस्टर. द राइट आंसर इज क्लस्टर, सो टिक इट. सेकेंड, पैक एंड पाइल. द राइट आंसर इज पैक. थर्ड, ग्रुप एंड हर्ड. द राइट आंसर इज हर्ड. फोर्थ, band and bunch. The right answer is bunch. 5, crew and fleet. The right answer is fleet. 6th, flock and litter. The right answer is flock. Okay, now come to the next one. Chair, book, toy, mat, shelf, कर्टन एंड क्लॉक आर सिंगुलर नाउन्स. व्हाट इज सिंगुलर नाउन? सिंगुलर नाउन क्या होता है? जब कोई एक चीज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन. जब एक से ज़्यादा होती है तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल नाउन. अब चेयर, सिर्फ एक चेयर है तो ये सिंगुलर नाउन. बुक मतलब ओनली वन बुक. टॉय, ओनली वन टॉय. मैट, ओनली वन मैट. शेल्फ, ओनली वन शेल्फ. कर्टन, कर्टन क्या, जो आपके घर में पर्दा रहता है वो. क्लॉक, एक क्लॉक जो घड़ी. अब चेयर की जगह चेयर्स मतलब एक से ज़्यादा चेयर हो गई तो वो हो गया हमारा प्लूरल हो गया. बुक की जगह बुक्स हो गया, एक से ज़्यादा बुक्स होंगी तो वो हो गया हमारा प्लूरल नाउन. जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन? अ नाउन दैट रिफर्स टू द वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन. वो नाउन जो कि रिफ़र करता है सिर्फ एक पर्सन को, प्लेस को, एनिमल्स को, थिंग्स को, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन. A noun that refers to the more than one person, place, animal or thing is called plural noun. ऐसे नाउन जो रिफ़र करता है एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को, उसे हम बोलते हैं प्लूरल नाउन. नाउ नेक्स्ट, complete the sentences with the plural form of the underlined noun. One has been done for you. अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में सिंगुलर नाउन दिया हुआ है. अब नीचे उसके फिल इन द ब्लैंक्स, उस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें उसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन में लिख के उस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. लाइक फर्स्ट वन, दिस काफ इज वॉर्म. दीज काफ्स आर वॉर्म. सेकेंड, द चाइल्ड हैज़ अ पेंट ब्रश. द चिल्ड्रन हैव पेंट ब्रशेस. थर्ड, my foot is larger than yours. My feet are larger than yours. Fourth, the sheep are grazing in the field. The sheep are grazing in the fields. Next, I have a box of crayons and a pencil. I have two boxes of crayons and some pencils. Last, there is a tomato and a potato in the basket. There are tomatoes and potatoes in the basket. Next exercise. Now next is a countable noun and uncountable noun. ये क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, अब ये होता क्या है? वी कैन काउंट दीज नाउन इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. सच नाउन आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. वो नाउन जिसे हम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे गिन सकते हैं, उस नाउन को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स. ठीक, फिर आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स. दोज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड. ऐसे नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते उसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. ठीक, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे. टिक द काउंटेबल नाउन एंड क्रॉस द अनकाउंटेबल नाउन. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हमें टिक करना है, जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसको हम क्रॉस करना है. कैप्स, काउंटेबल नाउन, टिक मार्क. मनी,
countable noun, tick mark. Dogs, countable noun, tick mark. Buses, countable noun, tick mark. Ship, countable noun, tick mark. Deer, countable noun, tick mark. Eggs, countable noun, tick mark. Salt, salt को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं. सो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, क्रॉस इट. टाइम, क्या टाइम को हम कभी गिन सकते हैं? नो. सो क्रॉस इट. गन्स, टिक मार्क. फिश, काउंटेबल नाउन, टिक मार्क. टेबल, काउंटेबल नाउन, टिक मार्क. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. हियर इज़ अ फैमिली ट्री, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. ये बहुत ईजी है बच्चों. दिस यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. आपको क्या करना है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, योर सेल्फ, कज़न. ये लिखा हो ग्रैंड फादर के नीचे, सबके नीचे देखिए जगह बनी हुई है उस बॉक्स में. उसमें आपको अपने ग्रैंड फादर के नाम लिखना है. ठीक है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अपना, फिर अंकल का, आंटी का, कज़न, भाई बहनों का, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है. दिस इज़ योर होमवर्क. दिस यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. आपको ये अपने से करना है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. चेंज द जेंडर ऑफ दीज नाउन्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. पहले में हमारा मस्कुलाइन जेंडर है, उसको हमें चेंज करना है फीमेल जेंडर में. ठीक है? फर्स्ट वन इज सर. सर का क्या हो जाएगा? मैम. आंट, आंट का क्या हो जाएगा? अंकल. नाइस, नाइस का क्या हो जाएगा? नेफ्यू. ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा? सिस्टर. ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का क्या हो जाएगा? ग्रैंड फादर. गुड. कम टू द नेक्स्ट वन. जॉइन द अंडरलाइंड nouns in the sentences with noun from the box to make compound noun. Then use the compound noun to complete the sentence one has been done for you. Compound noun is also very easy. Compound noun are the noun that joins two word together to make a new word. दो वर्ड को ज्वाइन करके न्यू वर्ड जो बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन. ठीक है? अब इसमें क्या करना है? देखिए, द ही प्ले, ऊपर बॉक्स में डिफरेंट वर्ड दिया हुआ है. ठीक? अब नीचे क्या करना है? ही प्लेस्ड द पेपर अंडर द. अब पेपर पर अंडरलाइन है, पेपर के साथ हमें ऊपर वाले से कोई भी ऐसा वर्ड लेना, उसको ज्वाइन करके जिसका न्यू मीनिंग निकले उसको हमें बगल में लिख देना है. ठीक? ही प्लेस्ड द पेपर अंडर द पेपर वेट. सेकेंड, द. अब इसमें कौन, सेकेंड वाले में कौन सा अंडरलाइन है? वुड. तो वुड से हमें ऐसा ऊपर से ज्वाइन करना है कि न्यू वर्ड बन सके. द वुड कटर carried the stack of wood home. Third, a key on my laptop's keyboard is not working. Fourth, the children had fun building a snowboard in the snow. स्नोबोर्ड क्या होता है? स्नोबोर्ड जो आपका जब बारिश जब बर्फ़ का टाइम होता है तो एक बोर्ड बनाया जाता है जिस पे बच्चे बैठ के सरकते हैं, उसे हम बोलते हैं स्नोबोर्ड. फिफ्थ, रिमेंबर द मॉप द बाथरूम फ्लोर आफ्टर द बाथ. सिक्स्थ वन, द न्यूज़ इज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ दिस मॉर्निंग्स न्यूज़पेपर. सेवेंथ, Rohini does her homework as soon as she reaches home. Last one. I went to a shop, but the shopkeeper was nowhere to be seen. Good. I think all of you have completed. Now come to the next one. Match the pictures correctly to form compound noun, then write the 5 words formed in the given blanks. This is also very easy. फर्स्ट कॉलम में पिक्चर बना हुआ है, सेकंड कॉलम में पिक्चर बना हुआ है, दोनों को मैच करना है पिक्चर को, और उस पिक्चर से कौन सा वर्ड हमारा न्यू वर्ड बन रहा है उसको हमें सामने लिखना है. लाइक फर्स्ट वन इज कप केक. सेकंड वन इज फुटबॉल. मैच करते जाइए और लिखते जाइए. थर्ड वन इज स्टार फिश. फोर्थ वन बटरफ्लाई. फिफ्थ वन sunflower.
Okay, come to the next one. Let's perfect it. Complete the words using the correct option. One has been done for you. बहुत easy है ये. अब यहाँ पे पहले में एक एक वर्ड दिया हुआ है और उसके ठीक सामने ब्रैकेट में दो वर्ड दिया हुआ है, ठीक. तो उन दोनों वर्ड में से जो राइट वर्ड होगा वो हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स वाले के साथ जोड़ना है. एंड वी हैव टू मेक अ न्यू वर्ड. लाइक फर्स्ट वन, ओवर कोट. सेकंड, स्पेस शिप. थर्ड वन, मून लाइट. फोर्थ वन, सन सेट. फिफ्थ वन, आर्म चेयर. नाउ exercise B, fill in the blanks with the plural form of the nouns given in a bracket. ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं. अब ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है उसका हमें प्लूरल फॉर्म में लिख के इस फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है. प्लूरल फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा जब हो तब. आई हैव सिल्क स्कार्फ्स. SCARVES, स्कार्फ्स. सेकंड, there are potatoes in the basket. POTATOES, potatoes. Third one, we must brush our teeth every day. TEETH, teeth. Fourth one, these chairs are kept for the guests. CHAIRS, chairs. Fifth one, the ladies were waiting at the railway station. LADIES, ladies. Now next one, change the gender of the underlined noun and rewrite the sentences. अब पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में एक वर्ड हमारा अंडरलाइन दिया हुआ है. उस अंडरलाइन वाले वर्ड का हमें जेंडर चेंज करना है. जेंडर मतलब अगर वो मेल में है तो उसको फीमेल में करना है, अगर वो फीमेल में है तो उसको मेल में करना है. ऐसे हमें चेंज करके फिर न्यू सेंटेंस बना के नीचे लिखना है. जैसे फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर गोज़ टू स्कूल. अब सिस्टर पे अंडरलाइन है तो सिस्टर की जगह अगर चेंज करेंगे जेंडर तो क्या हो जाएगा, ब्रदर. तो क्या लिखेंगे, माय ब्रदर गोज़ टू स्कूल. Like second one, my uncle sings well. My aunt, uncle पे देखिए अंडरलाइन है तो in place of uncle you will write it down aunt. My aunt sings well. Next, I saw a tiger at the zoo. I saw a tigress at the zoo. Female of tiger is tigress. Fourth one, the boy played in the park. The girl played in the park. Fifth one at the last and the last one, the princess smiled. The prince smiled. Okay, next one, write whether these words are of the masculine, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. ठीक है, यहाँ वर्ड दिया हुआ है. अब हमें ये देखना है कि ये वर्ड अगर मैस्कुलाइन होगा मतलब मेल होगा तो एम लिखेंगे, फेमिनाइन होगा फीमेल होगा तो एफ लिखेंगे, न्यूटर होगा मतलब नहीं मेल होगा नहीं फीमेल होगा मतलब थिंग में होगा या कोई सामान होगा तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे. ओके, कैन वी स्टार्ट. किंग, किंग इज अ मैस्कुलाइन सो यू विल राइट एम. Table, table is not a masculine nor a female feminine, so you will write it down N. Loin, loin is a masculine, you will write it down M. Umbrella, umbrella is a neuter gender, N. Mare, mare is a female of horse, so you will write it down F. Next one, talk to your teacher and friends about what you would like to do when you grow up. अपने टीचर से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से कि जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं. जैसे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे देखिए, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज दे रिस्टोर ह्यूमन हेल्थ। अब मैंने यहाँ पे डॉक्टर लिखा है, लेकिन आप लोग को जो बनना चाहते हैं फ्यूचर में वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 नाउन्स ऑफ क्लास 3rd इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, आप लोग अपना इसका PDF मैंने इसके वीडियो के साथ अपलोड किया है, सो गो थ्रू योर PDF एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। थैंक यू।